वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली लक्षद्वीप आइलैंड्स में कुछ ऑर्डर्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पीपल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड सम अदर सोशल एक्टिविस्ट ऑन द मेनलैंड इंडिया, they are protesting against some orders that were passed recently by the administration of Lakshadweep Islands. So when this is in current affairs, we need to understand some more things about the islands, about the people, the tribes who are inhabiting these islands. ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स डिफिकल्ट, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. You can press the bell icon. On this channel, we discuss various current issues, including the monthly current affairs. और इन सभी वीडियोस की PDFs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर मिल जाती हैं. Then you can also follow us on Facebook and Instagram by the name Launchpad Education itself. So you can search Launchpad Education on Instagram or on Telegram, and the link to my Instagram account is in the description if you wish to follow me. तो स्टार्ट करते हैं, क्या कारण है, क्या इशू है जो अभी करंट अफेयर्स में है और क्या डिबेट हो रही है इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन द टीवी न्यूज मीडिया. तो ये सारी चीजें स्टार्ट हुई जब लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने कुछ ऑर्डर्स पास किए. इन ऑर्डर्स से उन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड्स में लगे हुए अल्कोहल पे बैन को हटा दिया. देयर इज अ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन लक्षद्वीप आइलैंड्स, जैसा कि इंडिया के कुछ और स्टेट्स में भी है, फॉर एग्जांपल गुजरात, बिहार. तो उसी तरीके से लक्षद्वीप आइलैंड्स में भी प्रोहिबिशन है, शराबबंदी है. लेकिन लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने इस शराबबंदी को हटा दिया. देन ही डिसाइडेड टू बैन द बीफ प्रोडक्ट्स. लक्षद्वीप आइलैंड्स की एक बहुत बड़ी आबादी बीफ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती है, जैसा कि इंडिया की और भी बहुत सारी स्टेट्स करती हैं. Many of them are in the northeast India. But in the Lakshadweep, administrator ने beef products को ban करने का order दे दिया. Then he also ordered to lift the restrictions on demolishing fishermen's shed built in coastal areas, saying that they violated Coast Guard Act. तो ऐसे कुछ orders यहाँ के administrator मिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने किए और उसके बाद लक्षद्वीप के लोग और बहुत सारे social activists, many people in the state of Kerala, they all started protesting. So let us know more about these islands. लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में मेनलैंड इंडियंस की जानकारी बहुत वीक है. एंड सिंस दिस इज इन द करंट, it becomes very important to know more about these islands, geography, history and much more. So हम start करेंगे about the geography of these islands. Lakshadweep Islands, this is an archipelago of 36 islands. That means ये एक islands का group है. It lies in the Arabian Sea and it is closest to the Indian state of Kerala. एंड केरला स्टेट और लक्षद्वीप आइलैंड्स के लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे स्पीक सम ऑफ द कॉमन लैंग्वेजेस. हाई कोर्ट ऑफ केरला इज ऑल्सो द हाई कोर्ट फॉर लक्षद्वीप आइलैंड्स एज वेल. सो कॉमन ज्यूरिसडिक्शन है केरला हाई कोर्ट की लक्षद्वीप आइलैंड्स पे भी. एंड आउट ऑफ दीज 36 टोटल आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, ओनली 10 आर इनहेबिटेड बाय पीपल. तो सिर्फ 10 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं. टोटल पॉपुलेशन लक्षद्वीप आइलैंड्स की है 64,430 पीपल. As per the 2011 census, 93% of these people are indigenous. They are Muslims and majority of them, they belong to Shafi school of Sunni sect. So we can say that majority of the Lakshadweep Islands inhabitants, they are Sunni Muslims. Lakshadweep Islands के ज़्यादातर लोग मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं, but there are exceptions as well. For example, on the Nicobar, it is one of the island. इस island के ऊपर लोग माही बोलते हैं, which is written in the Divehi script. And this language is also spoken in Maldives. So you can see that there is a diversity of languages on these group of islands itself. लेकिन ज़्यादातर लोग मलयालम बोलते हैं, and that is why they share a common heritage with the people of Kerala. The whole population of these islands, they have been classified as scheduled tribes. ST population है ज़्यादातर. And this has been classified also because of their economic and social backwardness. So we can see that there are multiple challenges on these islands. Economic और social backwardness भी है. सभी लोग tribals हैं, they are Muslims and most of them speak Malayalam language. Now a little bit about the history of Lakshadweep Islands. On 1st of November 1956, Indian states की reorganization की गई थी. And during this reorganization of Indian states, Lakshadweep Islands को separate कर लिया गया मालाबार डिस्ट्रिक्ट से. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1956 मालाबार डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा था लक्षद्वीप आइलैंड. एंड 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे इसको सेपरेट कर दिया गया एंड इट वाज मेड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी. और इस यूनियन टेरिटरी को नाम दिया गया लाक्षाद्वीप, मिनिकोय एंड अमनदीवी आइलैंड्स. ये डिफरेंट आइलैंड्स के नाम भी हैं. 1973 में लक्षद्वीप नाम अडॉप्ट कर लिया गया था. द डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज जो इन आइलैंड्स में रहती हैं वो हैं अमनदीवी, कोयास, मलमीज, मिलाचरीज.
ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन इट इज अ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड इनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट स्टेप्स उठाती है। एक अलग से मिनिस्ट्री भी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, स्पेशली व्हेन द रीजन इन विच दे लिव दैट इज इन द करंट। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स की ये कुछ ट्राइब्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान से देखने हैं। अमनदीवी, कोयास, मलमीज एंड मिलाच्रीज। अमनदीवी ट्राइब, दिस इज द फर्स्ट वन टू इनहैबिट दीज आइलैंड। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि अमनदीवी ट्राइब it was the first group of people to have inhabited these islands. They started living in the island called Amini. Second tribe है Koya tribe, and Koyas, they were formerly known as Tarawad. Koyas, they are the chief land owning class of the society. यानी कि ये land owners हैं and they are one of the most respected sections of the society in Lakshadweep Islands. They recognize themselves as outstanding and they maintain distance from other communities. So you can see the concept similar to the Indian society. Here you can see a similar example. So कोया ट्राइबल ग्रुप से अपने आप को आउटस्टैंडिंग मानते हैं, अपने आप को बेहतर मानते हैं बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं बाकी कम्युनिटीज के साथ। देन नेक्स्ट वन इज मलमी ट्राइब ऑफ लक्षद्वीप। दे आर द सेलर्स, ये सेलर कम्युनिटी है एंड दे यूज टू वर्क फॉर द कोयास. So they were the sailors of Koyas in the past and they are very good sailors, so they can pilot the vessel successfully than other communities. Last one that we are going to discuss is Milacharis, और ये आइलैंड्स की मेन वर्किंग कम्युनिटी मानी जाती है। देयर मेन प्रोफेशन इज टू गैदर नट्स फ्रॉम कोकोनट ट्रीज, और ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट भी है लक्षद्वीप की इकोनॉमी का। कोकोनट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर द इकोनॉमी ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो ये कुछ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू इज ओपन द एटलस एंड उसमें लक्षद्वीप आइलैंड्स और उसके आसपास की सभी वाटर बॉडीज, उनके नाम, ये सब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज रीजन्स। देन कमिंग टू द न्यूज, क्या न्यूज में था? 4 ऑर्डर्स पास किए गए थे एंड दीज ऑर्डर्स वर लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन एंड लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। ये 4 ऑर्डर्स पास किए गए थे जिसका प्रोटेस्ट वहां के लोकल्स कर रहे हैं। ना सिर्फ लोकल पीपल लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर प्रोटेस्टिंग दीज ऑर्डर्स। तो ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है विच इज इन सपोर्ट ऑफ दीज रेगुलेशंस राइट नाउ। सो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देयर हैव बीन प्रोटेस्ट एंड पीपल फील कि ये जो रेगुलेशंस हैं दे आर आर्बिट्रेरी, दे आर अथॉरिटेरियन एंड दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वे ऑफ लाइफ ऑफ लक्षद्वीप पीपल। नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स about the people and about the islands. Beef consumption, ये एक डाइट का काफी बड़ा हिस्सा है। You can see it is more than 60%. 95% के करीब लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिलोंग करते हैं। 97% of the union territory it is under forest area. So you can understand the ecological significance of these islands. Then let us see some more interesting features. क्राइम कितना होता है लक्षद्वीप आइलैंड्स पे? देयर इज ऑलमोस्ट नो क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन दीज आइलैंड्स। सो बिल्कुल भी क्राइम नहीं है, लेकिन एक रेगुलेशन ऐसी पास की गई है विच इज क्लेमिंग टू टारगेट द एंटी सोशल पीपल, एंटी सोशल और क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑन लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इसका क्या इंटेंशन है? दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट पीपल आर रेजिंग। एल्कोहल प्रेवलेंस अमंग मेन, तो कितने लोग शराब पीते हैं? इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगेन कोई भी शराब नहीं पीता है, बहुत कम लोग हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड्स पे शराब पीते हैं। बिलो पॉवर्टी पीपल आर वेरी लेस ऑन दीज आइलैंड्स। दे आर हैविंग अ वेरी ह्यूज शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड एज वेल एज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। एंड दिस इज अ यूनियन टेरिटरी विच इज हैविंग मुस्लिम मेजोरिटी। एक इंडिया की स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। देन लक्षद्वीप इज द यूनियन टेरिटरी जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी पीपल रहते हैं एंड 96% के करीब लोग यहाँ पे इस्लाम फॉलो करते हैं। सो नाउ दीज रेगुलेशंस, ये जो 4 रेगुलेशंस पास किए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज आइलैंड्स, बट पीपल आर सेइंग, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर लिविंग इन दीज आइलैंड्स, दैट दिस डेवलपमेंट is a disaster for their way of life, for their environment, for their economy and for their culture. So is this a development or a disaster? ये debate है, this is the issue. So that is why people, they have started protesting over these recent actions and administrative reforms implemented by Mr. Praful Khoda Patel. ये एक गुजरात के बीजेपी पॉलिटिशियन है एंड उनका क्लेम है दैट ये जो सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज आइलैंड्स एंड ही वांट्स कि लक्षद्वीप आइलैंड्स को मालदीव्स की तरह एक टूरिज्म हब बनाया जाए।
But the local representatives of these islands, they are saying that these actions are going to bring lasting damage to the ecologically sensitive archipelago. So let's see what these proposals are और उनसे दिक्कत क्या है. What is the problem? What is the criticism of these proposals? So the first one is to ban the slaughter of cow, calf, bull and buffalo. So beef ban in very simple terms. बिना certificate के, that is to be obtained from a competent authority, you cannot kill these animals. But this is the basic consumption of more than 50% of the people of these islands, and this decision has been taken without any consultation with the people of these islands. And ये order prohibit करता है, ban करता है the sale, transport, storage of beef and beef products. Now I understand that majority of Indians, they have this sentiment that cow is to be worshipped and cow is not to be killed. लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में भी अगर बीफ की कंजम्पशन अभी अलाउड है, सो व्हाई बैन बीफ इन दीज आइलैंड्स? दैट इज द क्रिटिसिज्म. Residents, they view this rule as a direct infringement on their culture and eating habits. They allege the rule was decided without any consultation with the local bodies. So it is like saying that if your basic cereal is rice or wheat और आपको आज से मना कर दिया जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये ऑर्डर दे देते हैं कि आज से आप चावल खाना बंद कर दोगे, यू आर नॉट अलाउड टू हैव राइस. विदाउट एनी कंसल्टेशन दिस ऑर्डर कम्स एंड आपको इमीडिएटली अपनी ईटिंग प्रैक्टिसेस को हमेशा हमेशा के लिए बदलना है. सो ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू प्रोटेस्ट दैट. सेकेंड प्रपोजल वॉज द ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन 2021. अब ये पंचायत एक्ट क्या बोलता है कि जो भी पंचायत के इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहते हैं, दे शुड नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन. So is there any such law for the पंचायत्स in India? सभी इंडियन पंचायत्स में ऐसा लॉ नहीं है. लोगों के अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो भी वो पंचायत इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं. But this is another dictate that has been issued by the administrator. And for those who already have more than 2 children, जिनके already 2 बच्चे हैं, they are not disqualified to fight elections, but they are supposed to not have any more children. और बच्चे पैदा नहीं कर सकते. So people are protesting that what is the motive? Are you trying to reduce the population? Because इंडिया में एक ऐसा सेंटिमेंट है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं और उससे डेमोग्राफिक डिवीजन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि इसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है. अगर आप पिछले जितने भी सालों के सेंसस को उठा के देख लोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन में when it comes to the proportion of different religious groups बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है. And different political parties, they have also opposed this move. एनसीपी, कांग्रेस, सीपीआई एंड इवन जो बीजेपी की वहां की यूनिट थी, अल्टीमेटली उन्होंने भी अपनी पार्टी के खिलाफ इन ऑर्डर्स का प्रोटेस्ट किया. देन द नेक्स्ट प्रपोजल, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड कर लिया कि अब से शराब लक्षद्वीप आइलैंड्स में अलाउड है. एंड करंटली देयर इज प्रोहिबिशन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स. सभी इनहैबिटेड आइलैंड्स में प्रोहिबिशन है, जहां पे लोग रहते हैं वहां पे शराब नहीं बेची जा सकती. एंड लीकर इज सर्व्ड ओनली एट रिजॉर्ट्स ऑन द अनइनहैबिटेड आइलैंड. There are some tourism spots on these islands. ऐसा ही मॉडल फॉलो किया था मालदीव्स ने भी अपनी डेवलपमेंट के लिए. तो मालदीव्स ने भी अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ सिमिलर मॉडल अपनाया था कि अनइनहैबिटेड आइलैंड्स पे ही हम टूरिज्म एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट करेंगे, सो दैट एनवायरमेंट या फिर वहां का जो कल्चर है उसको ज्यादा डैमेज ना हो सके. लेकिन इन ऑर्डर्स में ऐसे किसी भी कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखा गया है. नाउ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ लक्षद्वीप एस अस्कर अली, उन्होंने इस डिसीजन को जस्टिफाई करते हुए कहा दैट द लीकर परमिट्स वुड बी गिवन ओनली टू रिजॉर्ट्स फॉर टूरिस्ट्स एंड नॉट फॉर द लोकल्स. नाउ व्हाट इज द प्रोटेस्ट ऑफ द लोकल पीपल? रेजिडेंट्स, दे हैव अलेज्ड दैट द मूव इज गोइंग टू लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ लीकर सेल्स, की शराब की बिक्री आइलैंड्स के ऊपर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, एंड द कस्टम ऑफ प्रोहिबिशन दैट इज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड बाय दिस. नेक्स्ट हमारा ऑर्डर है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, एंड अ वेरी सीरियस वन. This authority is going to oversee development of towns on the islands with sweeping changes in the way land can be acquired and utilized. जमीन को किस प्रकार से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन एक्वायर करके यूज कर सकती हैं, इसके तरीके में बहुत ही बड़ा एक बदलाव किया जाएगा थ्रू दिस रेगुलेशन. अगर इंडिया की मेन लैंड पर भी लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई कानून पास किया जाता है तो बहुत हैवी प्रोटेस्ट होते हैं इफ इट मेक्स एक्विजिशन ऑफ लैंड इजी. और यहां पे तो बिना किसी कंसल्टेशन के ऐसा एक रेगुलेशन पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर दिया गया, तो ऑब्वियसली पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. देन दिस रेगुलेशन इट टॉक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्लानिंग एरियाज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज फॉर प्रिपेयरिंग अ लैंड यूज मैप एंड रजिस्टर ostensibly the large projects. Now people have protested against the way
this regulation was prepared and it was pushed without any consultation with them. They fear that large infrastructure and tourism projects can destabilize the environment, the ecology of these islands. And this notification, it gives powers to the administration to remove small land holdings of ST residents. So these are the reasons that people are protesting. Then next proposal, एंटी सोशल रेगुलेशन, एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक रेगुलेशन. नाउ वी डिस्कस देयर इज ऑलमोस्ट जीरो क्राइम ऑन दीज आइलैंड्स. सो ऐसा क्रिटिसिज्म है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि इन रेगुलेशंस का प्रोटेस्ट होने वाला है, एंड जस्ट टू कर्ब दीज प्रोटेस्ट उन्होंने एक और रेगुलेशन बनाया, दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन. इट प्रोवाइड्स पावर्स टू डिटेन अ पर्सन फॉर अप टू 1 year to prevent him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order. That means ये preventive detention है, अभी क्राइम हुआ नहीं है. क्राइम होने से पहले ही पुलिस 1 साल तक किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए लोगों को अरेस्ट कर सकती है और लोगों को डिटेन कर सकती है. नाउ व्हाट इज एंटी सोशल एक्टिविटी, इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी, और 1 साल के बाद अगर वो व्यक्ति इनोसेंट निकलते हैं, who is going to pay for that? And why such a draconian law? इतना खतरनाक law क्यों? When there are almost zero crime, so what is the intention behind this proposal? This proposal, it allows detention for anti-social activities for 6 months to a year without legal representation. तो आपको legal representation भी नहीं मिलेगी. The collector justified this and उन्होंने कहा कि island तो peaceful है, वो बात सही है. There have been reports of drugs being found along with weapons and live ammunition. And the purpose is to keep the youth from getting misguided by these illegal businesses. ये defense है जो administration ने दिया है. Now इसका protest residents ने किया है and they are very skeptical, they are suspicious. What was the need of such a stringent law in a UT with one of the lowest crime rates in the country? और ऐसे preventive detention laws बहुत easily देश के बाकी हिस्सों में नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं. So the protesters, they have this allegation that this regulation has been brought only to detain the protesters. और इन regulations को वापस लेने के लिए and in fact administrator को ही वापस बुला लिया जाए, ये कुछ डिमांड्स उठी और experts ने केरला के गवर्नर को भी इंटरवीन करने के लिए रिक्वेस्ट किया. इवन केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके इन सभी चीजों का प्रोटेस्ट किया है और इन रेगुलेशंस का प्रोटेस्ट हुआ दोनों अंडर वाटर. सो लोगों ने ओशन के नीचे जाके प्रोटेस्ट किया. दे सैट ऑन हंगर स्ट्राइक्स. दे वांट द रेवोकेशन ऑफ लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन. ऐसे प्लेकार्ड्स पकड़ के उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिकॉज द पीपल, द पॉपुलेशन ऑफ दीज आइलैंड्स, दैट इज नॉट अ वेरी मच. 64,000 के करीब लोग हैं एंड इट इज नॉट अ वेरी huge vote bank for any political party when it comes to the whole of India. तो यहाँ के लोगों ने ये इनोवेटिव तरीकों से प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज को उठाया, ग्लोबल अटेंशन पाई. तो केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमसली यानी सभी पार्टियों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया डिमांडिंग द रिकॉल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पटेल एंड रिक्वेस्टिंग सेंटर्स इमीडिएट इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ द आइलैंडर्स. द लैंड एरिया इज फुली कवर्ड विद कोकोनट ट्रीज. द मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप and fisheries is the main economic activity, employing a quarter of working population. So 1/4 working population fisheries और coconut sector में काम करती है. Now it is not to say कि यहाँ पे tourism promote नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए, but Maldives is a model and there are many other models globally of developing the tourism sector sustainably. So administration का claim तो ये है कि हम Maldives बनाना चाहते हैं, which is a very huge tourism hub. But the fact is that the strategy that they have adopted is a very different strategy as compared to Maldives. So that was everything about the Lakshadweep Islands and the protests that are happening against these 4 draft regulations. To never miss more such videos on current affairs, don't forget to subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon. And you can get the PDF of this video from the Telegram channel Launchpad Education.